كريستيانو. الله، لا أحد يضع الكرة في مكانها مثلك أبدا. هدف التعادل يأتي عن طريق كريستيانو رونالدو. السلام علیکم. وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہابی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس کی حقیقت آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں. تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ امام جو ہے وہ سنی ہے، وہابی ہے، کون ہے. تو اس صورت میں نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اب اگر علم ہو جائے اس کو کہ یہ جو امام تھا یہ وہابی تھا، تو پھر سے نماز کو دہرا لیں. اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح کے سوال میں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو، ایسی جو ہے وہ جگہ پہنچ جائے کہ امام کے بارے میں پتہ نہ ہو یہ سنی ہے یا وہابی ہے، تو وہ نماز پڑھ لے، اور بعد میں اگر علم ہو تو وہ نماز کو دوبارہ پھیرے. بعد میں اگر علم ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام جو تھا وہ وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، اہل حدیث یا کوئی بھی تھا، بد مذہبوں میں سے، بد عقیدہ لوگوں میں سے، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی اور اپنی نماز کو پھیرے. سنیوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ بد مذہب ہیں، خواہ وہ شیعہ ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہو، سب بد مذہب ہیں. لہٰذا ان کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی. اگر کوئی غلطی کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھ لے تو وہ اپنی نماز دہرا لے. یہ کہا جا رہا ہے ٹھہرو ذرا، صبر کرو، آگے اور بھی کچھ آپ کو دکھانا ہے. اب چلتے ہیں ایسے مولوی کی طرف جو کہہ رہا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز تو درکنار، ان کی مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب کرنا یہ ہے کہ اولاً پہلے ہی جانچ پڑتال کے جایا جائے یہ مسجد ہے کن کی. صرف مسلمانوں کی مسجد میں جایا جائے. وہابیوں اور دیوبندیوں کی مساجد میں بالکل بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے. اگر غلطی سے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا کہ وہ نماز نہیں. اب چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف کہ جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم تھا وہ علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے پاس بھی موجود تھا. یہ اتنی بڑی گستاخی لکھی گئی ہے کہ وہابیوں کے ایسے عقائد ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. سوال: وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: وہابی دیوبندی کے عقیدے کفری ہیں. مثلا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے. جیسا کہ ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ 8 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. اسی طرح ان کے پیشواؤں کی کتابوں میں بہت سے کفری عقیدے ہیں جنہیں وہ حق مانتے ہیں. اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے. اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے تو میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا، خواہ وہ اشرف علی تھانوی ہو یا کوئی اور ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ الا اللہ، کہ میرا پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں غیب میں ہے وہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو علم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیں وہ پردے کا اور غیب کا علم تو نہیں رہتا، وہ تو بتا دیا گیا ہے. جو علم بتا دیا جائے وہ غیب کا علم نہیں رہتا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا سب سے اعلیٰ تھا. باقی رہی اشرف علی تھانوی کی بات یا دیوبندیوں کی بات، تو ہم تو کسی فرقے کو پرموٹ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی اکابر کو پرموٹ کرتے ہیں، ہم تو دین اسلام کو پرموٹ کرتے ہیں. اب چلتے ہیں ایک مولوی کی طرف جس سے سوال کیا گیا کہ وہابیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اگر سنیوں کی مسجد نہیں مل رہی تو پھر ہم کیا کریں، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میری بہن کے لیے رشتہ نہیں مل رہا، لہٰذا وہ اپنی بہن کا نکاح کسی کتے سے کر دے. پاس میں کوئی سنی مسجد نہیں ہے، صرف ایک وہابی کی مسجد ہے، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
कई मरतबा इसका जवाब चैनल से दिया जा चुका है। और वहाबी के पीछे नमाज़ पढ़ना, ये जो लोग सवाल करते हैं कि कोई सुन्नी मस्जिद नहीं है इसीलिए वहाबियों के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई शख्स ये कहना चाहता हो कि मुझे अपनी बहन के निकाह के लिए कोई इंसान नहीं मिला, तो क्या मैं कुत्ते से निकाह कर सकता हूँ या जानवर से निकाह कर सकता हूँ अगर इंसान नहीं मिला। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है। अगर आपके पास कोई सही अक़ीदा सुन्नी इमाम आसपास नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अपनी तनहा नमाज़ पढ़ें। अगर हर शख्स के पीछे नमाज़ हो जाएगी तो शराबी और औरत के पीछे भी नमाज़ हो जाएगी। और नमाज का दौर मदार फ़कत ये नहीं है कि कोई भी नियत बांध के खड़ा हो और उसकी इमामत में आप नमाज़ पढ़ ले। इमाम के लिए अलग शराइत हैं, उसके अंदर अक़ीदों का सही होना, ईमान वाला होना भी शर्त है। लिहाजा कहीं अगर ऐसा है कि बद मज़हब इमाम है कि अगर आपको लगता है वो अक़ीदे के तौर से सुन्नी नहीं है तो फिर उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ कि जिसमें एक मौलवी कह रहा है कि वहाबियों के पीछे नमाज इसलिए नहीं होती कि वो दायरा इस्लाम से खारिज, काफिर और मुर्तद हैं। वहाबियों के पीछे जुमा पढ़ें या ज़ोहर पढ़ें? अच्छा सवाल है और कई मरतबा हमने इसका जवाब भी दिया है, फिर से आप सुन लीजिए। गुजारिश है ध्यान से सुनकर समझ लें, अपने दोस्तों को हर सुन्नी सही अक़ीदा को जरूर पेश करें ये वीडियो, ताकि सब इसकी इस्लाह कर सके। याद रखिए कि अहले सुन्नत वल जमाअत के नजदीक वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी और शिया ये जितने हैं ये सब के सब काफिर और मुर्तद हैं। दायरे इस्लाम में ये नहीं है। मुसलमान हम इन्हें मानते ही नहीं है क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है। दोस्तों, अब ये मौलवी कह रहा है कि सुन्नियों के अलावा वहाबी जो हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, लेकिन मेरा दावा ये है कि असल में दायरा इस्लाम से खारिज ये हैं। मामला तो असल में उल्ट है। ये नाम नहाद सुन्नियों के जो अकायद हैं, इन अकायद की वजह से ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं और मुर्तद हैं। दोस्तों, क्योंकि इन्होंने कुरान की आयात का इनकार किया और अल्लाह ताला के साथ शिरक किया है। हर उस शख्स के पीछे नमाज नहीं होती जो काफिर हो। हाजिर और नाजिर रहना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का खासा है। अगर कोई कहे कि कोई नबी भी हाजिर नाजिर था तो फिर अल्लाह के साथ बराबर का शरीक कर दिया गया, तो ये शख्स काफिर है। दायरा इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। इसी तरह गैब दान की सिफत, जो कुछ था या जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, ये सब जानना अल्लाह ताला का खासा है। अगर कोई कहे कि नबी भी जानते थे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा। इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा मानने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज होगा। और इसके अलावा जो कोई शख्स दो टोक कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज होगा। ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं होगी। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो कुरान मुकद्दस में आयात हैं जिनका इनकार कर दिया जाता है, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला के बराबर किसी नबी वली को शरीक कर दिया जाता है। इस वजह से ऐसा शख्स मुसलमान नहीं रहता और उसके पीछे नमाज नहीं होती। इस बात की तायीद मुफ्ती तारिक मसूद भी करेंगे, आप उनकी ये वीडियो देख लें। खुलासा ये कि किसी दूसरे मसलक के पीछे नमाज पढ़ना, देखो मसलक कोई भी हो, अगर तौहीद परस्त है, काफिर नहीं है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर काफिर है तो नमाज नहीं होगी। अब काफिर किसे कहते हैं? काफिर नामों से नहीं कि देवबंदी काफिर होते हैं, अहले हदीस होते हैं, बरेलवी होते हैं, फलान। काफिर की एक डेफिनेशन है जो इस्लाम के बेसिक और बुनियादी अकीदों का इनकार करे, जो नबी को आलिमुल गैब कहता हो, और आलिमुल गैब की डेफिनेशन ये हो कि हर चीज़ का इल्म था, तो हर चीज़ का तो अल्लाह को भी है, जब नबी को भी तो अल्लाह और नबी का इल्म बराबर हो गया ना, तो ऐसा शख्स भी इस्लाम से खारिज है। ठीक है ना। इसी तरह जो कहते हैं नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं बगैर किसी तावील के, दो टोक लफ्ज़ों में, सब कुछ अपनी खबर से हर जगह देख रहे हैं, हर चीज़ का हर वक्त इल्म रखते हैं, तो ये तो अल्लाह की सिफत है, तो इससे भी इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का, बशर होने का कोई दो टोक लफ्ज़ों में इनकार करे कि नहीं आप नूर थे, फरिश्ते थे, या नूरानी मखलूक, मिट्टी के बने हुए की बनी हुई मखलूक नहीं थे। इंसान जो है ना, लवाज़िमात जो गोश पोश का होता है ना इंसान, तो अगर कोई आपके बशर होने का इनकार करे बगैर किसी तावील के, यानी कोई घुमाता नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं आप बशर नहीं थे, लेकिन जब उनसे पूछो तो बात घुमाते हैं कि वो इस लिहाज से बशर थे मगर इस लिहाज से नहीं थे, तो वो फिर घुमाते हैं बात को। तो लेकिन जो दो टोक लफ्ज़ों में कहता है तो फिर वो भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, आपके वालिदैन थे, आपकी औलाद थी, और आपकी औलादों में की औलादें जो सैयद हैं सारे इंसान थे, आदम की औलाद, और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, या मुश्किल कुशा समझना, और मुश्किल कुशा का जब माना पूछो तो ये कहना कि अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए, आप जब चाहें जिसकी बिगड़ी बना सकते हैं, अल्लाह ने आपको सारे इख्तियारात दे दिए हैं, तो ये भी कुफ्र है। समझते हो? तो अगर कोई ये अकीदा रखता है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो इतने ब्रॉड माइंडेड बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जोड़ पैदा करने के लिए ये कहना हम हर एक के पीछे पढ़ लेते हैं। भाई हर एक के पीछे, जैसे इस्लाम का दायरा है ना, उस दायरे से आप निकाल नहीं सकते किसी को, तो ऐसे ही उस दायरे में खुद से ला भी नहीं सकते। ज़बरदस्ती उसमें घुसने की भी किसी को इजाज़त नहीं है, एक बाउंड्री है इस्लाम की।
उस बाउंड्री के ख्याल करना पड़ेगा। अब चलते हैं मक्की अल हिजाजी साहब की तरफ, जो कि हरम में दरस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला के अलावा भी कोई हाजिर नाजिर गैबदान और मुश्किल कुशा है तो वो शख्स मुशरिक है, उसके पीछे नमाज नहीं होती, ना ही उसके पीछे जुमा होता है। अगर नज़दीक ऐसे लोगों की मस्जिद है तो वो वहाँ पर जुमा ना अदा करे बल्कि घर में अपनी नमाज अदा करे। और आगे वो मसला बयान करते हैं कि अगर ऐसे अकायद रखने वाला बंदा किसी मुसलमान के साथ कुर्बानी में शरीक हो जाए तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। आप ये वीडियो देख लें। हमारे गांव में एक ही मस्जिद है जिसमें जुमा होता है, बरेलवियों की है, वो वहाँ न पढ़े नमाज, बेहतर है किसी दूसरी जगह जाके पढ़े, हत्ता कि ज़ुहर हो तो ज़ुहर पढ़ लें। जब जुमा होगा ही नहीं तो उससे तो ज़ुहर पढ़ना बेहतर है ना, बेदती के पीछे तो नमाज नहीं होती। हत्ता कि आज मैं किताब में पढ़ रहा था कि अगर आप मसलन कुर्बानी कर रहे हैं ईद की और उसमें आपने उस आदमी का हिस्सा रखा है जो हुजूर को नूर समझता है, हादिर नादिर समझता है, आलिमुल गैब समझता है, कब्र पे सजदा करता है, किसी की भी कुर्बानी नहीं होती कि आपने मुशरिक को शरीक कर दिया। अल्लाह के बंदे बस दुआ करो। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है, वीडियो में गुमराह किया जा रहा है। एक तो इनकी अकायद खुद कुरान के ख़िलाफ़ हैं और दूसरा ये लोगों को कहा जा रहा है कि बाकी सारे दायरे इस्लाम से खारिज हैं। असल में दायरे इस्लाम से खारिज ये लोग हैं जो ऐसे अकायद रखते हैं, इसलिए इनसे बचा जाए और इनके पीछे नमाज अदा करके नमाज़ों को ज़ाया मत किया जाए। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।